हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साइंस को लेके। क्लास 9th के बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट हूँ। हम डिस्कस करेंगे उनका कंटेंट जो उनके सिलेबस में जो है हम चलते आए हैं टिश्यूज़ को लेके। हमने अभी टिश्यू होता क्या है, टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, फिर हमने कहीं न कहीं एनिमल टिश्यू की भी बात अभी की हुई है। तो आज जो है जैसा कि प्लांट टिश्यू में हमने दो तरह के टिश्यूज़ का जिक्र किया, दैट इज दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो कहीं न कहीं आपको इसके बारे में क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि गिव डिफरेंसेस। कहीं पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है कि गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड ए परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क है। तो हमने इसको जो है वो इन शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ था कि जैसे सेल जो है, सेल्स हैव ए डिवाइडिंग कैपेसिटी because growth takes place in every living organism, and the cell, which is considered as a basic structural and functional unit of the life, it is a cell from where the life starts. If we can talk of the plants, animal or microorganisms, all these organisms, whether they are classified into plant kingdom, whether they are classified into animal kingdom, or they are from microbial world, because the microbial world is the biggest world. Means if we can talk of the living organisms, we can see the plants and we can see the animals, but there is another kingdom which is the biggest, which is invisible, and that is only seen with the help of some instrument. We can't see this world with our naked eyes, and all those microbes, these microbial worlds, which is a foe and friend of the human beings. Means हम इसको उसका हमें जानकारी होनी चाहिए कि without that world we on this universe are incomplete. Means हम बात करें कहीं न कहीं हमारे मेडिसिन्स की, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की, हमारी मेडिसिन्स की, हमारी अच्छी चीज़ों की, हमारे बुरी चीज़ों की, these microorganisms have role to play in that. Either we depend directly and indirectly upon those organisms. They are directly or indirectly beneficial or harmful for we people. So we can't, हम उनको छोड़ नहीं देंगे। जब भी हम बात प्लांट्स और एनिमल्स की करते हैं, जब भी हम बात लाइफ की करते हैं, एंड वी कैन उनको हम अलग से नहीं छोड़ते, हम उनको बहस इसमें लाने के बगैर नहीं छोड़ते, क्योंकि they are as important as the other food material, the other things which we need, means they are as important for us. So उनकी स्टडी करना भी हमें हमारे लिए अच्छा है। तो हम बात करेंगे कि सेल जो है और वो मोस्टली दे आर unicellular organisms, and all those activities which are performed by higher organisms, mean multicellular organisms, all those activities are performed by unicellular organism too. So जो है सेल की बात हम कर रहे हैं, तो सेल्स ग्रोथ हर चीज में होता है। ग्रोथ जो है ग्रोथ इज एज ए रिजल्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हम बात करेंगे कि जहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ टेक्स प्लेस, एंड वहाँ पे लेबर्स ऑफ ऑर्गन, मीन्स काम जो है वो बटा हुआ है। वहाँ पे हम प्लांट्स की बात ले लेंगे, देयर
is different systems. There is a root system, there is a stem, there is a branches, there are leaves, there are flowers. Means वहाँ division of labor is there. वहाँ पे हर organ का अलग काम है. Every organ system has to perform a separate function. Suppose as in human beings, these hands, these veins, nose, means different organ systems are there, and all these organs are responsible for different activities. As in leaves in plant, with the help of leaves are for the process of photosynthesis. Leaves contain chlorophyll in chloroplast, and in the by the use of raw material, by the use of water, this carbon dioxide in water, the photosynthesis process takes place in the leaves. Means the function of root is different from that of leaves. Leaves need water, but from where that water comes from? It is a function of roots that they can absorb the water, new water from the surface of the soil, and conduct that water through different tissues. हम बात इसलिए कर रहे हैं because there are complex tissues in a plant. Means there is a xylem and phloem which are meant for the conduction of water and mineral nutrients for the plants, which can absorb the water and the mineral nutrients from this soil and conduct and send and transport those material to the aerial part of the plant through xylem and phloem tissues. Means what are the xylem and phloem tissues? These are the complex tissues. Means different types of cells combined, they work together and they form xylem and phloem tissues. They are not simple, some but there are simple tissues. And ये जो सारा सिस्टम है ये as a result of cell है. और ये सेल कैसे बनते हैं? These cells are formed as continuous repeated divisions. ये ग्रोथ बनता है, सेल्स जो है बढ़ते हैं. कैसे बनते हैं? दूसरा ऑर्गेनिज्म ये डिवीजन से बनता है. और फिर डिवीजन क्या? डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस थ्रू द लाइफ. क्या उनका लाइफ स्पेन जितना है? क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या वो मेरिस्टेमेटिक ही रहते हैं? हमने बात की कि द सेल्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. दे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड्स टू फॉर्म अदर सेल्स. दूसरे सेल बनाते हैं. तो क्या वो सेल कंटिन्यूअसली थ्रू द लाइफ जितना वो है इसमें, क्या जितना उनका लाइफ साइकिल है, क्या थ्रू द लाइफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द सेल रिमेन्स द मेरिस्टेमेटिक? द क्वेश्चन है कि जब भी सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल है, टिश्यू है, जो सेल टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जिसे हम नाम दें मेरिस्टेमेटिक tissue, it means the cells in the meristematic tissue continuously divide. They have power, they have capability of division. Means कि वो they divide continuously or sometime or some but they loses the capability of division. क्या वो कभी कभार इस जो डिवीजन उनका जो फंक्शन है, जो पावर है, क्या कभी उसको वो लूज भी करते हैं? क्या वो एहलियत खो भी देते हैं उस डिवीजन को? तो वही हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट कहाँ से बना. ये जो सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड होता गया और जो टिप्स पे ग्रोथ होता गया, टिप्स में जो है मेरिस्टेमेटिक ही टिश्यू रहते हैं और फिर जो नीचे बनता जाता है, जो ग्रोथ बनता जाता है, वो परमानेंट बनते जाते हैं. मींस परमानेंट टिश्यू इज एज ए रिजल्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वंस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू loses this capability of division, that become the permanent tissue. Now we will differentiate them. हम differentiate करेंगे मेरिस्टेमेटिक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो नंबर 1 जो है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, सेल्स हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी। Cells in meristematic tissue, cells have capability of division। तो यहां पे जो है सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, बट इन परमानेंट टिश्यू में जो दे सेल डू नॉट have capability of division। इसमें जो है सेल्स की कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड होते हैं, बट इन दिस वो कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन जो है वो दे सेल डू नॉट डिवाइड, दे लूजेस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। इट मींस जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उसको खो लेता है, इस पावर को, इस एरिया को डिवाइड होने के काबिल नहीं रहता, तो उस समय जो इसको परमानेंट सेल बोले जाते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो यहां पे डिफरेंशिएट नहीं होते, एक सेल दूसरे से अलग नहीं होता है। तो बट इन केस सेल्स आर वेल डिफरेंशिएटेड। यहां इसमें जो है मेरिस्टेमेटिक सेल में जो है डिफरेंशिएशन नहीं है, सेल डिफरेंशिएशन नहीं है, मींस हम एक को दूसरे के साथ अलग नहीं कर सकते, बट हियर सेल आर वेल डिफरेंशिएटेड। फिर नेक्स्ट जो है सेल्स आर स्मॉल। इसमें जो है सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोमेट्रिक। ये एक जैसे होते हैं, मींस देयर शेप इज सिमिलर एंड दे आर स्मॉल। In meristematic tissue, the cells are small and they are similar, but in case of permanent tissue, they are not same in shape and size। वो in permanent tissue, they are not same in shape, there is the variable, they are variable in shape and size, means in case of this the cells are similar, they are same in size, they have same shape, they are same in size, but in case of permanent tissue the cells are not same in shape and size, neither their shape is same, neither their size is same। कहीं पे बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं पे एक वो जो है एक किस्म का, कहीं पे दूसरे किस्म का है। फिर वो जो है फोर्थ जो है वैक्यूल्स और एब्सेंट। वैक्यूल्स एक खास स्पेस होती है कुछ एक्टिविटी के लिए, दैट इज एब्सेंट। वैक्यूल्स आर एब्सेंट बट वैक्यूल्स आर मोस्टली प्रेजेंट। इसमें जो है वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और मैच्योर सेल में प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस आर मोस्टली एब्सेंट। सेल के दरमियान जो है वो जगह नहीं होती इनमें। इंटरसेलुलर स्पेसेस are not
आर एब्सेंट, फिर हियर इन दिस इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट, वो जो है इंटर सेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती। वैक्यूल्स एब्सेंट है, वैक्यूल्स मोस्टली प्रेजेंट है। सेलुलर सेल जो है डिफरेंशिएटेड है, हियर इन दिस केस सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। और भी है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म is at high speed, मतलब मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है विद इन सेल्स भी होती हैं। और इन मैरिस्मेटिक सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म इज at high speed, but metabolism in this permanent tissue, metabolic activities are at low speed. इसमें कम होती है, उसमें ज्यादा होती है। इसमें हाई स्पीड है, इनमें लो स्पीड है। सेल वॉल इज थिन इन केस ऑफ मैरिस्मेटिक, सेल वॉल इज थिन। इसमें जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल जो है मैरिस्मेटिक टिश्यू में, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज वेरी थिन, बट इन केस ऑफ इट इज थिक, आइदर थिन और थिक। यहाँ पे जो है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, मींस यहाँ पे थिक और थिन भी हो सकती है। कवरिंग, आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग इसमें permanent tissue में there is a possibility that the outer covering of the cell may be thick or thin. In this meristematic tissue, the wall is very thin. Wall जो है cell wall, that is thin. But in case of this permanent tissue, either it is thin or thick. ये thin भी हो सकती है और thick भी हो सकती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, और कोई चीज इसमें नहीं होता है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट इन मैरिस्मेटिक टिश्यू। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, कोई भी इनऑर्गेनिक चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन इज एब्सेंट, इसमें नहीं होता है। बट क्रिस्टल्स, इसमें जो है क्रिस्टल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफन प्रेजेंट। इसमें मैरिस्मेटिक टिश्यूज में, इनमें इनऑर्गेनिक इंक्लूजन नहीं होता है, दैट इज एब्सेंट। बट इन दिस केस क्रिस्टल ऑफ इनऑर्गेनिक, crystals of inorganic are present, but the inclusion of crystal and inorganic substances there, और जो है crystals and the inorganic molecules are present। इसमें चाहे क्रिस्टल की बात करो या किसी इनऑर्गेनिक जो है they are included, and जो लास्ट पे जो है it is a simple tissue, it is a simple means only one kind of cells work together, assemble together to form a meristematic tissue, but in case of permanent cell it may be simple or complex। ये simple भी हो सकता है और complex। in case of this it may be simple or complex। इसमें जो है सिंपल, इसमें सिंपल होता है इन दिस मैरिस्मेटिक टिश्यू इट इज ए सिंपल, बट इन केस ऑफ दिस इट इज ए ये जो है कॉम्प्लेक्स है।
चूंकि इसमें अलग अलग तरह तरह के ये जो अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स होते हैं, तो इसलिए इट इज ए complex, but their working, their function is a similar. So this was all about the differences between the this permanent and mesomatic tissue. कभी आपको पूछा जाता है, कभी 1 नंबर का, कभी 3 नंबर का, और कभी 5 नंबर का, तो मैंने बेटर समझा कि आपको डिफरेंसेस ज्यादा हों, ताकि कभी कभार आपको 5 डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो कभी कभार लॉन्ग आंसर टाइप में भी कि आप हिस्ट्री लिखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, मेंशन 5 और 4 फंक्शन. सो ये सारा जो था दिस वाज ऑल अबाउट दिस. तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और ये आज के इसके लिए सफिशिएंट है. थैंक्स.